Now, children, as we read in the first part about the major crops, so now we'll know what are these major crops and the conditions or the factors which helps them to grow, like the temperature, the sunlight, the rainfall, all these things. First, the crop is the rice. Staple crop, it is a staple food crop of majority of people in India. ज़्यादातर लोग इंडिया में राइस खाते हैं. India is the second largest producer in the world after China. Kharif crop, which requires high temperature above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. These types of question comes in your board exam about the conditions which help the rice to grow, about the temperature and the rainfall. It grow in the plains of north and northeastern India. Plains में ही ये grow होता है. Coastal areas of the deltic regions. Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. So नई टेक्निक के थ्रू ये बाकी स्टेट्स में भी ग्रो हो सकता है. सो अपार्ट फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स ये बाकी स्टेट्स में भी ग्रो होते हैं. You can see in the map the areas which are the major producer of rice. So the green one are the major area and the white one is the minor area. See, these are the producers of rice in India. Next is wheat, जिसको हम बोलते हैं गेहूँ. Second, it is the second most important cereal crop, main food crop in north and northwestern part of the country. वहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं wheat को. It requires cool growing season and bright sunshine at ripening time. पकते टाइम इसको कैसा सीज़न चाहिए? कूल होना चाहिए और जो धूप हो वो ज़्यादा हार्ड ना हो. Bright sunshine at the ripening time. It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall, every evenly distributed over the growing season. It is important wheat growing zone, that is Ganga Satluj plains and black soil region in Deccan, मतलब साउथ में. Major wheat producing states are the Punjab, Haryana, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. ये स्टेट्स भी याद रखना है क्योंकि आपके मैप वर्क में इंपॉर्टेंट है, आते हैं. द मार्क द स्टेट्स विच आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट. सो आप ये सब में से कोई भी स्टेट एक ऐसा चुन लें और उसको मार्क करेंगे. हम ना अगला देखेंगे मैप का ही. ये है व्हीट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंडिया. सो जो पिंक में है वो मेजर है और जो लाइट है कलर का है वो माइनर एरिया है. सो प्रोडक्शन देखें नॉर्थ साइड में ज़्यादा हो रहा है व्हीट का. नेक्स्ट इज़ मिलेट. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं ग्रेन्स के, अनाज के, लेकिन इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. Ragi is rich in iron, calcium and other micronutrients and roughage. It is a crop of dry regions and it grows well on red, black, sandy, loamy and shallow soils. Karnataka is the largest producer followed by Tamil Nadu. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh are also important ragi producing states. सो रागी के भी स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है. ये न्यूट्रिशनल वैल्यू में भरा होता है. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. It is a rain-fed crop grown in moist areas. जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहीं पर ही क्रॉप ग्रो होते हैं. The Maharashtra is the largest producer of jowar, followed by Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Third is the bajra. Bajra grows well on sandy soils and shallow black soils. Rajasthan is the largest producer followed by Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana. So ये थोड़ा सैंडी सॉइल्स, थोड़ी बालुई मिट्टी पे होते हैं, जिसलिए राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है बाजरे का. मेज़ ये दोनों के काम आता है. ये जानवरों के लिए भी काम आता है और इंसानों के लिए भी. इट यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर. Kharif crop, which requires temperature between 21 to 27 degrees Celsius and grows well in alluvial soil. Alluvial soil 6 टाइप की टोटल सॉइल्स होती है जिसमें सबसे फर्टाइल सॉइल को माना जाता है alluvial soil. In states like Bihar, it is grown as a rabi crop also. सीजन वाइज होता है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दोनों क्रॉप में आएगा. It is the use of modern inputs like HYV seeds,
fertilizers and irrigations have contributed to the increasing production of maize. Major maize producing states are कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं इनको मार्क करने के लिए मैप में। सो मैप वर्क के लिए इसको याद रखिएगा कौन से स्टेट्स में कौन सी क्रॉप ज़्यादा ग्रो होती हैं। पल्सेस के क्या है, दाल के बारे में क्या है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। प्रोडक्शन के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन होता है वो इंडिया में ही होता है पल्सेस का, दाल का। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। ऑब्वियसली इस दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। मेजर पल्सेस ग्रो इन इंडिया आर तुर, जिसे बोलते हैं अरहर दाल, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। सबसे ज़्यादा इसका इंडिया में प्रोडक्शन होता है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। सबसे प्लस पॉइंट इनका है कि इनको जो नमी भी चाहिए वो कम चाहिए और ये सूखे एरिया में भी ग्रो हो जाते हैं। ऑल दिस क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air, because of which it is grown in rotation with other crops. अरहर की दाल का फ़ायदा ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। अब नाइट्रोजन का फिक्स करने का मतलब ये है कि सॉइल के अंदर उसकी अपनी डाइट होती है। डाइट मतलब कि उसके भी हेल्प ग्रो करने के लिए उसके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो 3 होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में NPK। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटेशियम। सो नाइट्रोजन को फिक्स करता है जिससे जो सॉइल्स होती हैं वो काफ़ी फर्टाइल होती हैं। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। ये सारे स्टेट्स में ज़्यादातर दालें प्रोड्यूस होती हैं। शुगर केन के क्या है, गन्ने का। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ही बीच में ग्रो होते हैं। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। इसमें कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसको मैनुअली ग्रो किया जाता है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन शुगर केन का ब्राज़ील में होता है और दूसरे नंबर पे जो वो इंडिया है। मेन सोर्स ऑफ शुगर जैगरी, जिस मतलब गुड़ कहते हैं, खांदसारी एंड मोलासिस। मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हर प्रोडक्शन में आगे या उत्तर प्रदेश प्रोडक्शन के स्टेट्स में है। सो ये हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है सब क्रॉप्स का। टी, चाय कहाँ पे होती है। द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। टी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लांटेशन का। प्लांटेशन हमने पढ़ा था कि सब जो एक बड़ी सी ज़मीन पर सिर्फ एक क्रॉप का प्रोडक्शन हो उसी को हम बोलते हैं प्लांटेशन। इसका मेन यूज़ होता है कि हम प्रोडक्शन करके उसको सेल भी करने, जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स भी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस बाई इन इंडिया बाई ब्रिटिश। बेवरेज क्रॉप बोलते हैं वो क्रॉप जिसको हम पी सकें। टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंडाउड विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉयल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। सो नॉर्मली ये ट्रॉपिकल ही रीजन मिलेंगे जहाँ पर उनको वेल ड्रेन्ड सॉयल मिले और रिच इन ह्यूमस, टेम्परेचर अच्छा हो, ऑर्गेनिक मैटर मिले ज़मीन के अंदर। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इसको कैसा चाहिए, थोड़ा सा गर्म चाहिए और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए थ्रू आउट द ईयर ताकि वो ग्रो हो सके। टी रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा स्केल पर होता है, बड़े स्केल पे होता है, इसके लिए हमको ऐसे लेबर चाहिए जो स्किल्ड हो। टी इज़ पोजेस्ड विद द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। ऑब्वियसली इसको टी गार्डन में रखा जाएगा। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेशन जो होता है इंडिया टी का वो इंडिया से ही है। दूसरी तरफ कॉफ़ी है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो इंडिया से ही है, लेकिन अफसोस कि हमको बेहतर क्वालिटी, जो सबसे अच्छी क्वालिटी होता है वो हम इंडियंस नहीं यूज़ कर पाते, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। द अराबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। दिस वैरायटी इज़ ऑफ ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा,
अराबिका वैरायटी सबसे महंगी वैरायटी है और सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी पूरी दुनिया में। इट्स कल्टिवेशन वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कॉन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। उसके बाद उसकी अलग उसकी क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोडक्शन के इसके लिए फैक्टर्स हैं, इसलिए ये हर जगह ग्रो नहीं हो सकती। ये है हमारी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक्सपोर्ट होती हैं। Next, we will know about the horticulture in the next video. Just till then, try to listen and clear all the things from your book as well as this video. Thank you so much.